السلام علیکم، میں سید کاشف رضا رضوی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، جس موضوع کو زیر بحث لائیں گے، وہ ہے واقعہ کربلا، شہادتوں کی عظیم داستان۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ حق و باطل ہمیشہ ایک دوسرے سے سفارا رہے ہیں۔ تاریخ نے ہر داستان حق و باطل کو اپنے اوراق میں محفوظ کیا ہے، اور ہر قوم نے ملک و ملت پر جان دینے والوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ سارے قبل فاخر واقعات اپنی جگہ، مگر 61 ہجری کے واقعہ کربلا میں ہونے والی شہادتیں اپنی جگہ، جہاں ہر شہید انگوٹھی میں ایک نگینہ ہے، اور ہر شہادت فخر و رنج و من کی ناقابل تمثیل کہانی ہے۔ یہی سبب ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود مسلمانان عالم یوں سوگوار و مغموم ہوتے ہیں جیسے یہ مصیبت خانوادہ رسالت پر تازہ ہی گزری ہو۔ آمد محرم کے ساتھ ہی شہادت سید الشہداء امام حسین اور رفقائے حسین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہر مسلمان اپنے آہنگ و طرز و انداز میں ہر اول دستے کی مثل پیش نظر آتا ہے۔ آئیے واقعہ کربلا پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب امام پیدا ہوئے تو بی بی فاطمہ نے بچے کو گود میں لیا اور گود میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کو گود میں لے کر خوش ہوئے۔ اس کے بعد آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے۔ پوچھا کہ بابا کیا سبب ہے کہ پہلے آپ خوش ہوئے، مسرت آپ کے چہرے سے آیا تھی، اور اب آپ کا چہرہ مغموم ہے؟ کہا کہ میں خوش اس لیے تھا کہ مجھے بشارت ہوئی تھی، نوید ہوئی تھی کہ یہ بچہ جوانان جنت کا سردار ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بچہ کربلا میں بھوکا پیاسا، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اسی لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو گویا واقعہ کربلا کی بشارت پیدائش حضرت سید الشہداء کے وقت سے ہی ہو گئی تھی، اور حسین کی ساری زندگی اسی سفر کی تیاری میں اور اسی واقعے کی تیاری میں ہی رہی۔ بہرکیف واقعہ کربلا قریب تھا، حکومت یزید آ چکی تھی۔ یزید آپ علیہ السلام کی بیعت کی اہمیت، قدر اور ناگزیریت کو بہت اچھی طرح سمجھتا بھی تھا، اور اسے اس بات کا علم تھا کہ اس کی حکومت کے استحکام کے لیے یہ بیعت کس قدر ضروری ہے۔ اس نے آپ علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا، اور ساتھ میں یہ شرط رکھی کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ آپ نے یکلخ جواب دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کرے، لہٰذا آپ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران امام نے گویا کہ کوفے کی سمت جانے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ آپ نے یہ محسوس کیا، اور اہل کوفہ نے آپ سے یہ کہا بھی اور اندیا و اشارہ بھی دیا کہ اگر آپ کو مدینے سے بے دخل کر دیا جاتا ہے تو آپ کوفے آ جائیں، یہاں آپ کو مامون اور چین نصیب ہوگا۔ لہٰذا امام نے جاتے وقت کہا کہ میں نکلا ہوں امر بالمعروف کے قیام کے لیے اور نہی عن المنکر کے قیام کے لیے، یعنی میرے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ میں برائی کو روکوں اور نیکی کی ترویج کروں، اور اگر اس معاملے میں میرے گردن کاٹ دی جاتی ہے، حلقوم پر چھری چلا دی جاتی ہے، تو آؤ تلواروں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ دیکھیے کس قدر شدید جذبہ ہے امام علی مقام کا۔ بہرکیف امام روانہ ہوئے 28 رجب کو۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو امام اپنے رفقائے کار کے ساتھ، اپنے آل و اہل بیت کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کربلا کی سفر پر روانہ ہوئے۔ محضر نامے میں نام لکھے گئے، اور سب کو ایک عجیب انداز کے ساتھ سوار کرایا گیا، اور ایک جاہ و جلال کے ساتھ یہ قافلہ مدینے سے سفر کی جانب روانہ ہوا۔ یہ قافلہ روانہ ہوا تو ادھر جو اہل مدینہ تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور کیوں نہ جاری ہوں، نواسہ رسول جو اب
हमारा साया थे, अब आपका साया नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। इसी दौरान, सफ़र के दौरान हज का भी मौका आया। इमाम हज का इरादा करते हैं और हज के इरादे के दौरान इमाम अपने सफ़ीर, अपने भाई मुस्लिम बिन अकील से कहते हैं कि जाओ जाके कूफे की खबर लो और बताओ कि वहाँ क्या सूरत हाल है ताकि हम कूफे की तरफ आएं। लेकिन इमाम ने कुछ अजीब व गरीब वाक़यात की बू महसूस कर ली थी। इमाम ने ये अंदाज़ा कर लिया था कि मक्के में हज के दौरान मुसलमान मुझे मारने के लिए आए हैं। इमाम नहीं चाहते थे कि मक्के में कत्ल हो और काबे में खून बहे, लिहाजा आप इस खुरेजी से बचने के लिए हज नहीं करते, हज को उम्रे में तब्दील करते हैं और उम्रे में तब्दील करके हज को और वहाँ से रवाना होते हैं। इसी दौरान एलची यानी सफ़ीर हुसैन मुस्लिम बिन अकील जब पहुँचते हैं कूफा तो कूफे में उनकी बड़ी खातिर मदारत की जाती है। जब वो नमाज़ पढ़ाते हैं तो नमाज पढ़ाने के दौरान बहुत बड़ा मजमा उनके पीछे होता है, लेकिन गवर्नर इब्न ज़ियाद सरकारी असर रसूख इस्तेमाल करता है और अहले कूफा को मना करता है कि वो इमाम के पीछे या सफ़ीर हुसैन के पीछे नमाज अदा ना करें। सिर्फ यही नहीं, जब खुतूत रवाना कर दिए यहाँ से मुस्लिम बिन अकील ने कि मौला यहाँ तो सब अच्छा है, फसल तैयार हो चुकी है, लोग आपके बैत को तैयार हैं, आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। जब खुतूत रवाना हो गए और हुकूमत को इस बात का इल्म हो गया कि अब खुतूत रवाना हो चुके हैं, तो फिर मुस्लिम बिन अकील और उनके बच्चों के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया गया और उनकी लाश को दारुल अमारा में लटका दिया गया। उधर इमाम हुसैन को बज़ाहिर यही इत्तला मिली थी कि यहाँ तो सब अच्छा है, लिहाजा इमाम कूफे की तरफ रवाना हुए। रास्ते में लश्कर ने इमाम को रोका और कहा कि आप आगे नहीं जा सकते। इमाम को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि कूफे तो यकीनन वो नहीं पहुँच पाएंगे और रास्ते में ही उन्हें यकीनन या तो बैत करनी पड़ेगी या जंग करनी पड़ेगी। बैत का रास्ता इमाम के पास था नहीं और इमाम के पास अब दूसरा रास्ता था कि वो दीन इस्लाम के लिए अपनी और अपने बीवी बच्चों की और अपने आइज़ व अक़रबा की कुर्बानी दे, लिहाजा इमाम उसके लिए तैयार थे। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला पहुंच गए जहां पर ये कुर्बानी होनी थी और इमाम को अंदाज़ा हो चुका था कि यही वो जगह है जहां पर वो शहीद किए जाएंगे। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। 10 मुहर्रम को जंग हुई। जंग तो 9 मुहर्रम को होने वाली थी, लेकिन इमाम ने एक दिन अस्कार के लिए यानी ज़िक्र अल्लाह के लिए वक्फ किया था। अब आप देखिए कि इमाम को ज़िक्र की क्या ज़रूरत थी, लेकिन ये इरफान था, ये ज़िक्र इलाही की एक मेराज थी, ये मोहब्बत इलाही की, मोहब्बत तौहीद की, मोहब्बत वहदानियत की, हुब्बे वहदानियत की गोया के एक उरूज और एक मेराज थी जो इमाम सबक देना चाहते थे कि मरने से पहले भी, शहादत से पहले भी, सांस रुकने से पहले भी, सांस खिंच जाने से पहले भी ज़िक्र अल्लाह ही करो और उसी के दौरान अपनी जान दो। बहर कैफ जंग शुरू हुई। क्योंकि इमाम जंग की तैयारी से नहीं आए थे और लश्कर भी महदूद था, लेकिन उसके बावजूद इमाम और उनके साथियों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, लेकिन असर तक इमाम समेत कोई भी बाकी ना रहा। सब शहीद हो गए। सबसे पहले असहाबे हुसैन गए, उन्होंने शहादत दी। उसके बाद जो अक़रबा थे, जो रिश्तेदार थे जिनको आप कहते हैं, वो गए, उन्होंने शहादत दी। एक वक्त ऐसा आया कि इमाम अकेले थे, लेकिन वो करीबन 70 साल का बूढ़ा इस तरह से जंग कर रहा था कि जैसे कोई जवान जंग कर रहा हो। बहर कैफ वक्त असर आया, इमाम सजदे में गए और इमाम का सर सजदे में जुदा कर दिया गया और उसके बाद खैमे जला दिए गए और इमाम के बच्चों को, औरतों को और बूढ़ों को कैदी बनाकर कूफे और शाम में फिराया गया, जो कि एक अलग दास्तान है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि लोग कहते हैं कि इमाम बकसदे जंग आए, लेकिन आप खुद देखें कि अगर कोई जंग के लिए आता है तो अपने साथ साजो सामान लेकर आता है, लेकिन इमाम के पास कोई साजो सामान मौजूद नहीं था, जो इस बात का सबूत था कि इमाम जंग के लिए नहीं आए थे।
इमाम के लिए एक हदीस वारिद हुई, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। अब आखिर इसका करबला से क्या ताल्लुक़ है? करबला से ताल्लुक़ ये है कि हर औलाद अपने बाप से होती है। रसूल कह रहे हैं हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे। लाज़िम बात है कि पहले नाना है फिर नवासा है। लेकिन दूसरा जुमला बड़ा अजीब है कि मैं हुसैन से हूँ, यानी एक नाना ये कह रहे हैं कि मैं नवासे से हूँ। आखिर इसका क्या मतलब है? इसका मकसद ही ये है कि रसूल इस अम्र से वाकिफ़ थे कि ये बच्चा, ये मेरा नवासा उस दीन की हिफाजत करेगा, उस दीन के क़याम के लिए अपने और अपने आल औलाद की जान दे देगा, जिस दीन को मैंने परवान चढ़ाया, जिस दीन को मैंने फैलाया, जिस दीन की बिना मैंने रखी, ये बच्चा उसकी हिफाजत करेगा। और फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं शाह हुसैन बादशाह हुसैन दियस हुसैन दीपना हुसैन सरदाद तदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। यानी वो ये कहते हैं कि हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। हुसैन ने बैत नहीं की, असल में उस वक्त हुसैन की बैत नहीं थी। हुसैन का हाथ दरअसल अल्लाह का हाथ था। अगर इमाम आली मकाम दस्त यजीद पर बैत कर लेते तो गोया इमाम आली मकाम बैत नहीं कर रहे, गोया दीन इस्लाम बैत कर रहा है। तो इमाम का हाथ उस वक्त दीन इस्लाम का हाथ था, इमाम का हाथ उस वक्त हक्कानियत का हाथ था, क्योंकि यजीद हलाल हुसैन को, हलाल रसूल को, हलाल खुदा को हराम खुदा में और हराम खुदा और रसूल को हलाल खुदा और रसूल में तब्दील कर रहा था। फिर कहा हक्का के बिना इला इला हुसैन, यानी अगर दीन की इमारत को देखोगे तो इसकी बुनियादों में तुम्हें खून हुसैन नजर आएगा। क्या ज़बरदस्त, क्या उम्दा नजराना अक़ीदत है। और फिर कहा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। यानी सिर्फ मुसलमान नहीं, हर कौम के लिए वाक़या करबला एक शहादत है। और फिर कहा कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। भाई करबला तो एक ही बपा हुई है, हर करबला क्या है? बताने का मकसद ये है कि हर दौर में हक भी होगा और बातिल भी होगा। हक का इस्तिआरा इमाम हुसैन के साथ है, बातिल का इस्तिआरा यजीद के साथ है। यानी हर हक जो बातिल के मुकाबले में खड़ा हुआ है उसके लिए वाक़या करबला एक मिसाल है, और उसको वाक़या करबला एक तमसील के तौर पर और एक स्टैंडर्ड के तौर पर, एक मयार के तौर पर उसको रखनी चाहिए। और उसको ये जहन में तसव्वुर करना चाहिए कि जिस तरह इमाम आली मकाम ने बातिल के आगे सर नहीं झुकाया बल्कि सर कटा दिया, इसी तरह हमें भी इस्तकामत के साथ बातिल का मुकाबला करना है। यही दर्से करबला है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।